Hey everyone, welcome to our channel. Before starting the video, you will be having a question: Who am I? Who am I? The person who speak on these topics. So let me clear you that I was also NEET aspirant. I was also NEET aspirant, and I have been also gone through all the phases, through all the emotions you have right now. So let's start the video from here. So if you think if you have a rank of 300, 400, 500 or 550 plus, then you think you should not if you are thinking that I should wait for counseling and see what happens after counseling and then think of taking a drop, then I think so it's a bad decision which you are thinking, because from 2019 NEET exam marks has been not mattered a lot. Your rank has been mattered a lot, and if you think you have a rank of nearly 30,000 or 40,000 max to max, then only you should wait for the counseling. Otherwise, you should start your preparation if you are very willing that you have to become only a doctor and you have to join MBBS only, because nowadays the person who is getting 500 plus is also getting a rank of 45,000 or 40,000. So it's a logical answer that there are only 40,000 or 50,000 seats of government colleges, and also that is divided into so many reservations. And if you think that you have got a rank of 40,000 or 35,000, and if you are waiting that you will get a college at least, then I think so that's a wrong thing you're expecting, because there are so many reservation, 10% EW, 27% OBC, and seeing all that factor, I don't think so you should wait for the counseling. And how is the procedure going of counseling is like, it will start probably from 7th January, because 6th January we have a date in the Supreme Court. From 7th it will be starting, 7th January, then it around take 3 months. So 7th January, January, Feb, March, and the last 4 rounds like stray vacancy round. And now MMC have also said that they are going to conduct 4 rounds of all India counseling. So it can go till April, and then you have only 2 to 3 months for preparing the NEET exam. So I think so that could be a very bad decision, and then you will be ending like कि अरे यार मेरे पास तो 3-4 महीने ही थे, तो I couldn't prepare good for the NEET exam. You should not give reasons to all this, like, because if you are taking a drop, then you should be very sure that I have to do something and have to get a good college. Because investing your 1 year, I won't say wasting, investing your 1 year again in your dreams, in your goals, is a very big thing. You should not do like that. You should be full dedicated, hard work, and you should have full josh of doing that, so that you can succeed, you can get a good college. You should have self-confident. इफ़ यू आर थिंकिंग, आपको पहले आपको नीट वाले डे पे जाना होगा और फिर से आपको सोचना होगा कि मैंने क्या क्या मिस्टेक की है, क्या मेरे साथ पेपर में हुआ था कि मैं अच्छा नहीं कर पाया, कि क्या क्या रीजंस थे मेरी नीट एग्ज़ाम में, आई वोंट से फेल होने में, सक्सेड नहीं होने में, क्या क्या मिस्टेक्स थी, वो सब आपको चेक करना चाहिए कि क्या मैंने 100% सारे टेस्ट दिए थे. फिर आपको और थोड़ा फ्लैशबैक में जाके अपने कोचिंग, या अगर आपने खुद से ही पढ़ाई की है, कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, सेल्फ स्टडी की है, तो आपको सोचना चाहिए क्या मैंने सारे टेस्ट दिए थे, क्या मैंने सारे रिविजन्स किए थे, आपको सब वो सोचना चाहिए. और फिर आपको एक लिस्ट डाउन करना चाहिए कि मैंने क्या क्या मिस्टेक की थी और क्या क्या मिस्टेक मुझे आगे नहीं करनी है. क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मंथ्स है, और आपको उन 4-5 मंथ में कुछ अच्छा करके अच्छी रैंक ला के अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपकी ड्रीम कॉलेज के अंदर. तो आपको पहली बात, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है, अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो भले आपका फर्स्ट ड्रॉप हो, सेकंड ड्रॉप हो या थर्ड ड्रॉप हो, कोई मैटर नहीं करता. फर्स्ट ड्रॉप या सेकंड कुछ मैटर नहीं करता है ये सब. तो आपको फर्स्ट ऑफ थिंग रीज़न क्या है कि आप डेडिकेटेड हो. अब ऐसा नहीं हो कि आपने अपना स्टार्ट कर दिया एंड देन यू आर लाइक कि बस अब मुझसे नहीं हो रहा, यू हैव टू स्टॉप. नो, ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको 100% डेडिकेटेड होना चाहिए कि हाँ मुझे कुछ करना है, मतलब करना ही है. सेकेंड, आपको एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट और टाइम शेड्यूल करके आपको सारी चीज़ें करनी होगी. आपको सिर्फ देखना होगा कि कैसे
आपने क्या मिस्टेक की थी, कहाँ पे आपका टाइम मैनेजमेंट बराबर नहीं था, कहीं आपने बायोलॉजी को 45 मिनट से ज़्यादा तो नहीं दे दिया। एंड बायोलॉजी को 30 मिनट्स ही देना होता है, उससे ज़्यादा नहीं देना होता है। टाइम मैनेजमेंट फिर आपको देखना है कि आपका जो जोश है वो थ्रू आउट द 4-5 मंथ जो भी है वो सेम रहे। ऐसा नहीं कि आप बीच में ही गिव अप कर दे कि यार मुझसे हो रहा है या फिर मैं नहीं कर पाऊँ। सेल्फ डाउट कभी नहीं करना। आप लाइफ में भले कोई भी फील्ड में हो, कुछ भी करो, आपको कभी भी सेल्फ डाउट नहीं करना है। आपको खुद पे बिलीव करना है। भले आपको लोग, आपके फैमिली में आपको रिलेटिव्स हैं, फैमिली वाले कभी नहीं बुरा बोलेंगे कि रिलेटिव्स में कोई आपको बोल रहा है कि नहीं तुझसे नहीं हो पाएगा, क्यों अपना ईयर वेस्ट कर रहा है। सो डोंट थिंक अबाउट दैट ऑल पीपल, यू जस्ट कीप गोइंग ऑन वॉट यू आर डूइंग। थिंक दैट वॉट एवर आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ एंड that will create a big good thing in my life, in my career, so I should do that and not think of anyone else. फिर आपको एक टू डू लिस्ट करनी है जिसके अंदर आपको लिखना है कि मुझे टेस्ट देने हैं बराबर, मुझे रिवीजन करने हैं, मुझे कौन से टॉपिक बराबर करने हैं, एंड फिज़िक्स मैं पढ़ सकता हूँ क्या मुझे कोई कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं। ये सारे क्वेश्चंस का आपका आंसर आपको खुद ही ढूंढना है, क्योंकि एट लास्ट ये आप ही का डिसीजन होना चाहिए कि आपको नीट रिपीट करना है कि नहीं। क्योंकि मैं और बहुत सारे मेरे जैसे लोग हैं वो सिर्फ आपको गाइड कर सकते, आपको बता सकते कि आपको क्या करना है, बट एट द एंड यू वॉन्ट एक आपको ही डिसाइड करना है। आपको किसी के फ्लो में नहीं आना है और अपना फ्रेंड सर्कल सुधारना है। ऐसे फ्रेंड्स के बीच में बैठो कि जहाँ आप पढ़ने वाले बच्चे हो, जहाँ आप उनके साथ अपने डाउट्स शेयर करो। ऐसे नहीं है कि आप अपना एक और ईयर वेस्ट कर दो, ऐसा नहीं करना, क्योंकि एक साल बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपकी एज निकल जाती है आपका, और किसी बड़े लोगों ने कहा है कि टाइम वन गॉन इट इज़ गॉन फॉर एवर, इट विल नॉट कम अगेन। सो सी टू इट एंड डू थिंग्स लाइक दैट। और एक दिन आप लो अपने आप के ऊपर और सोचो कि क्या करना है मुझे, क्या मुझे नीट 22 के लिए प्रिपेयर करना है, क्या मैंने क्या गलती की थी, क्या वो नहीं रिपीट करनी है। वो सब आपको सोच के सब अपने ऊपर खुद ही सोचना पड़ेगा। एट आप कितने लाइफ पे दूसरे पे डिपेंड हो, खुद ही एक दिन सोचो कि मुझे क्या करना है, क्या गलतियाँ की थी वो सब रिपीट नहीं करना है। एम आई रेडी कि मैं वो गलतियाँ वापस रिपीट ना करूँ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है आप अपने थ्रू आउट द ईयर अपने टीचर्स पे बिलीव करो, क्योंकि शायद आप नीट एग्ज़ाम पहली या दूसरी बार दे रहे हो, बट आपकी टीचर्स के पास 20 ईयर्स का एक्सपीरियंसेस है, तो उनका एक्सपीरियंस आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो आपको राइट गाइडेंस देगा। कोई टीचर अपने स्टूडेंट का पूरा नहीं चाहेगा, वो आपको एक राइट गाइडेंस देंगे। तो शायद आपके लाइफ में वो पहली बार हो रहा, बट आपकी टीचर्स के लाइफ में वो 4-5 बार। आप जैसे स्टूडेंट, आप सबको ऐसे लगता है हम सब यूनिक है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी बहुत सी क्वालिटीज़ होती है जो सेम होती है, तो टीचर हमको ज़्यादा अच्छे से पहचान सकती है। सो डू बिलीव इन योर टीचर। सो द लास्ट की पॉइंट व्हाट आई हैव टू से इज, फर्स्ट, इफ़ यू आर रेडी to give all your 100% that you are dedicated for the NEET exam, then do give the exam. Second, time one gone is gone forever, so don't waste it, use it wisely. Third, are you ready for all the hard work you have to do? Are you ready to give all the tests? Fourth, you should have self-confidence that if I can do, if anyone can do, then I can also do. There are a lot of people who are giving the NEET exam for 4th or 5th time, then I should also do it. Fifth, you should be motivated to all the year. You should be not like 2 दिन के लिए जोश था फिर जोश नहीं था, that shouldn't be done. Sixth, you should believe in your teacher. Always believe in your parents. What they are saying is saying for your good. They doesn't want you to harm you. Sixth, analyze, think properly what you should do, because after all at the end it's only up to you. Okay, so ending here the video. Thank you for being with me till now and listening to me properly. And I have a special announcement that if you want कि टॉपर्स की क्या क्वालिटी थी उन पर एक वीडियो बनाने के लिए, तो आई विल बी डेफिनेटली रेडी टू मेक दैट अ न्यू सीरीज़, जिसमें मैं रैंक होल्डर जो AR 1, 2, 3 जो भी नीट के रैंक होल्डर्स थे उनकी क्वालिटीज़
पे एक वीडियो बनाऊँ कि उन्होंने क्या क्या फॉलो किया था, उनसे आप क्या सीख सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए, so that you can score good in your exam. Thank you. So at the end, like, share and subscribe to our channel for this new all content.